In y it is at a maximum height of h. ठीक है? So for the x-axis, in the x direction, a is 0, the u is u cos theta, right? U is u cos theta. Do you have a doubt? Ask if you have. Okay. And in y, the acceleration is minus g, it is downwards, and the initial velocity is u sine theta, that is upwards. Okay. I can also write just g downwards. Okay. Okay. And yes, yes, I will also edit ux and uy. Okay, ux and uy. Okay. Now, you will get the time from, we calculate time from vertical motion. We calculate time from vertical motion. We calculate time from vertical motion. ठीक है? Vertically y है, v कितना है ऊपर तक from a, अगर ये point a है, a to b, चलो a to b देखते हैं, a to b. If you see y, what is the u? Uy is u sin theta. How much is v? Final velocity 0, 0, 0. Vertically देख रहे हैं ना, vertically. v 0. Acceleration कितना? Minus g. Okay. And time you can find out. Time you can find out by saying v minus u by a. V minus u, so 0 minus u sin theta by minus g. So it is u sin theta by g. Understood? That is your time from a to b. And therefore write b to c time is equal. You can also find it, but it is equal. Okay. So time from a to c, 2u sin theta by g. This is your time equation. ठीक. सेकेंड है, बोलिए. v. Okay. So you can find velocities at different points. Velocity at a is u cos theta I cap plus u sin theta j cap. Velocity at b is just u cos theta I cap. लिखना. Velocity at c is u cos theta I cap minus u sin theta j cap. If you want to find how I've got velocity at c, you can do you can do what you can do is you can find out the velocity after time to u sin theta by g. So for example, initial velocity at this point vertical is u sin theta. Okay, and your acceleration is g downwards. So you can find the velocity after time from a to c by saying v is u plus at. In that u is u sin theta plus acceleration कितना है minus g और time कितना है 2u sin theta by g. If you do that, you will get u sin theta minus 2u sin theta, which is minus u sin theta. Understood? ठीक है? Because the I cap is constant always. Correct. ठीक है? This is your time. Sorry. Done. ठीक. उसके बाद ये टाइम निकल आया इसी, और फिर सेकंड इक्वेशन क्या होती है? S equal to, तो vertically if you use the second equation from here to here, you can find the h also. S, so S, which is this height, which you need to find is ut plus half it square. उसमें u कितना है? u कितना है? u sin theta. T कितना है?
यहां से यहां तक है ना टाइम, तो जस्ट यू साइन थीटा बाई जी। ए कितना है, माइनस जी, टी स्क्वायर है, तो फिर से डालो, फॉर्मूला डालो, आ जाएगा, ठीक है। डालो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस, सो एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम है यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस जी, टी स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस ये जी गया, हाफ u square sine square theta by g. If you do, this is, if you solve this, you get u square sine square theta divided by 2g. ठीक है, this is your h, fine, and this is h formula, and of course the r formula is very easy. The range you can find out by saying that range is just the horizontal speed into the horizontal time, or the total time. So range is u cos theta into the time, which is 2u sin theta by g. You get u square into 2 sin theta cos theta by g, which is u square into sin 2 theta by g. Okay, u square into sin 2 theta by g, because 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Okay, okay, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Now there are some derivations. For example, जल्दी लिखो, तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, ठीक है, फाइन। और फिर लिखो, क्वेश्चंस लिखो। इफ फॉर मैक्स, क्वेश्चन वन है फॉर मैक्सिमम हाइट क्या होना चाहिए, हाइट का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए, वो बुक चाहिए। फॉर मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही है ना। थीटा कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम हाइट, तुम्हारा u बड़ा होना चाहिए, u ज्यादा होना चाहिए, g कम होना चाहिए, बहुत सिंपल, ये तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं। फॉर गिवन प्रोजेक्टाइल दे आर फिक्स्ड वैल्यूज, सो थीटा कितना होना चाहिए, 90। यस, क्वेश्चन 2 फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इज 90, ठीक है। नेक्स्ट फॉर मैक्स रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, क्या होना चाहिए थीटा, 45 डिग्री, राइट, बिकॉज साइन 90 विल बी 1, ठीक है, ठीक है। फॉर मिनिमम रेंज क्या होना चाहिए, थीटा इज हाउ मच, 90, यस, वेरी गुड, साइन 180 जीरो है, नॉट गो एनीवेयर, सॉरी, साइन 2 थीटा है ना, साइन मैक्सिमम कितना वैल्यू होता है, 1 कितने एंगल पे, 90, तो अंदर का एंगल क्या होना चाहिए, 90, 2 थीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए, 2 थीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए, तो थीटा 45 होना चाहिए। अभी समझ में आ गया। अगर मैं एक बॉल है जिसको यू से फेंकता हूँ,
और उसको मैं ऐसे फेंकता हूँ तो ऐसे जाएगी, अगर ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे होके ऐसे वापस आएगी, अगर ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे जाएगी। समझ में आया? तो डिपेंडिंग ऑन द एंगल उसका ट्रेजेक्टरी होगा, बट फॉर सम एंगल इट विल गो लाइक दिस एंड 45 डिग्री पे मैक्सिमम दूर जाती है। वही क्वेश्चन है। ओके ओके, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट h by r is tan theta by 4। प्रूव करो। प्रूव दैट h by r is tan theta by 4। दिखा है ऊपर, दिख रहा है ना, tan theta by 4। फोर्थ, आ गया? एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर इज सेम। कॉम्प्लीमेंट्री तो समझ में आता है क्या? h बाई आर tan थीटा बाई 4 नहीं आ रहा है? ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? h का फॉर्मूला लिखो, r का फॉर्मूला लिखो, देखो tan थीटा बाई 4 आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, h बाई आर इज tan थीटा बाई 4। तुमको आया? h का फॉर्मूला क्या है? r का बाई साइन टू थीटा का एक्सपेंशन होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल r इज सेम। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक थीटा है तो दूसरा कितना है? वाओ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180। बेसिक मैथ भूल गए, ज्योमेट्री। तो थीटा डालो एक बार रेंज फार्मूला में और एक बार डालो 90 माइनस थीटा, और फिर देखो दोनों सेम रेंज आ रहा है क्या? सॉरी, यस। फोर्थ वन में एक आएगा साइन ऑफ थीटा, साइन टू थीटा सॉरी, एक में वो यू स्क्वायर एंड यूजुअल तो आएगा ही। सेकंड वाले में आएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा। व्हेन यू ओपन दिस इट विल बिकम साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। And what is sine of 180 minus sine of a minus b is sine a cos b minus cos 180 into sine 2 theta. How much is sine 180? That is 0. It is 0. Cos 180 is minus 1. So it is, the final answer is sine 2 theta only. Cos 180 is minus 1. You have to show it. फिर लिखो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है एक्स ऑन वाई। ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करते हैं? यू हैव the x coordinate of the particle. How much is it at any time t? X coordinate, where is the particle at x? What is the x of the particle at any time t? Cos theta into where at some time t the particle is at some x comma y. How will you find this x comma y after some? So this is t equal to 0, this is t equal to t.
at some time t after the projection. What is x coordinate? It was thrown with u in horizontal. It is going with a constant speed of वही यूज करेंगे तो क्या ये क्या आएगा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर a कितना है yes and correct x is u cos theta x is u cos theta t how much is y बस correct this is a general point okay now I want you to find x and y when time is equal to 0 so case 1 ठीक है case 1 case 2 what is the half time of flight u sin theta by so t is equal to u sin theta by g u sin theta by g right and at third time is what is the full time क्या है 2u sin theta by g अब देखो जब तुम ये डालोगे तो जो इसका आंसर है ना फर्स्ट वाले का आंसर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है 0 का तो इसमें तुमको डालना है t को 0 इसमें भी 0 तो 0 आ रहा है ना x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है when you put t is to u sorry u sin theta by g पार्टिकल कहाँ है इस पॉइंट का पॉइंट में कहाँ है कौन सा पॉइंट है बी r/2 तो इसका आंसर आना चाहिए r/2 कॉमा एच वो तुमको वेरीफाई करना है कि इसका आंसर r/2 कॉमा एच आ रहा है कि नहीं और तीसरे का आंसर क्या आना चाहिए थर्ड आंसर क्या आना चाहिए r,0 वेरीफाई करो अभी वेरीफाई दीज थ्री थिंग्स ये आ रहा है कि नहीं ऑरेंज वाला वेरीफाई करो वो आ गया क्या सर क्वेश्चन
आ रहा है तुम लोग से? वेरीफाई हो गया ये ऑनलाइन पे? अबिता, डेविड, ऐशा, इज इट वेरीफाइड? So I'm doing the third one. First two are verified. सॉरी, I'm verifying the third one. First two are verified. ईशा, you verified all three? ठीक है, ओके। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में मोरलेस हो गया, ये हो गया वेरीफाई। लास्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज टी, हाउ मच इज टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन? x by u cos theta. Put that here, put that here and find y. Pick equation of trajectory. Pick t from first equation, which is t is x by u cos theta, and put in the second equation. इसमें डाल दो, डाल दो, इसमें इसमें और इसमें डाल दो, देखो क्या आता है। फिर लास्ट में दिखाओ इट इज इक्वल टू दिस, ये आना चाहिए। रिड्यूस करो उसको। Slightly tricky, so take your time. For a reference, you can साइड में r भी लिख सकते हो, कितना है साइड में r लिख लो, कितना है, कितना है r भाई g, उसको तोड़ के लिख लो, 2 sin theta cos theta है, it will help you. I think cos theta. Yeah. So I think you multiply divided by sin theta. Yes, then you will get.
स्क्वायर इसमें से u स्क्वायर 2u स्क्वायर एक cos थीटा और sin थीटा बाई जी, ये कितना है? ये r है ना, ये 1/r है, और ऊपर फिर एक sin थीटा बचा, एक cos थीटा बचा, tan थीटा कॉमन आ गया, सो इट इज x स्क्वायर tan थीटा बाई r, ये लिखा हुआ ये पूरा टर्म है ना। so, और u स्क्वायर अच्छा इसमें x यू कैंसिल नहीं, बस इतना ही है ना, u नहीं, ठीक, बस तो इसमें x कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है, ठीक है। सॉरी, यस यू डू। There is a question in exemplar which is exemplar mein hai, so I'm reading the question here. So it is shown that yes, अच्छा ये भी होता है कि this because this is x square, it's a parabola, right? एग्जाम में आ सकता है, show that equation of trajectory is a parabola, so right because it's x square it's a parabola, ठीक है। उसमें बोला है कि a पे हाईएस्ट पॉइंट b है, ये पॉइंट c है, ठीक है। बोल रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट्स a b c, ठीक है। सो शो द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखो, शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट्स a b c। इसमें से इजी कौन सा है, सबसे इजी? शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द पॉइंट्स a b c। पहले तो इजी कौन सा है, वेलोसिटी इजी कि एक्सेलरेशन इजी है? acceleration, it is always g downwards, g I have told you many times, no, it is always g downwards. Velocity, the velocity at b is like this. In fact we can actually tell what is the velocity at b, it is u cos theta. Velocity at c is like this, velocity at a is like this. Keep in mind कि तुम्हारा a पे और c पे velocity का magnitude थोड़ा ज्यादा है c b से, it is like the vector, this vector, these two vectors are greater in magnitude than this vector, okay. The higher a particle is, lesser is its speed, so the lesser is the magnitude of the arrow. Higher the particle is, lesser its speed is. You have to take these small points into consideration, ठीक है। Sorry, yes that's the arrows, but still, okay. There is an exemplar question which says that, so this is throwing something from a elevated, so this is, you are throwing with a height at a height h, and this is the point of throwing, okay. So you are throwing with v naught and the angle is theta. This is an exemplar question also. Then in there, so of course when it reaches these horizontally barabar jab pahunchega na yahan pe symmetrically point, so then this angle will be theta, okay, symmetrical hai. No, it will go again, further also it will go, from this point also it will go, right? I mean after that point it goes like this, right, and hits here. So let us do this motion, okay, कितना जाता है इसमें ना, इस पॉइंट को बोला इस डायग्राम में
देखो वैसे तो रेंज होता है, जो भी रेंज है, तो टेक्निकली रेंज पूरा ये होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी द रेंज where it is hitting the ground horizontal, how much it is covering, but for some reason in this question they have said that this is r, okay, fine, and they're saying this is delta x, some just delta x, okay, check. Okay, now you you can find the horizontal, the vertical component you can find, always do for time, to find time always do vertical component. Vertical component में यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली कहाँ है, यहाँ है, ठीक। अब क्या करना है, हाउ मच इट हैज गॉन, व्हाट इज द डिस्प्ले, व्हाट इज द फर्स्ट, ये बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकली, v नॉट sin थीटा लाइक दिस, यहाँ पे वर्टिकल नहीं पता ना नीचे वेलोसिटी कितना है, it has increased by from v naught sin, it has increased, it is more than v naught sin theta, so we don't know final velocity, right? Out of v is equal to u plus at, you know this one, you know a and you know u, but you don't know two variables, right? So this equation is useless. What is second equation? S is equal to ut plus half at square. From the motion from here to here, do you know s? Yes, it is. हाँ, ये वर्टिकल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं ना, व्हाट इज एस, ये पार्टिकल पहले यहाँ था, अभी यहाँ पर है h, if you're saying h, that means you have taken this direction as positive, it's your choice, you can take this direction as positive, then a will be positive, okay fine, that also way on. वर्टिकली कहाँ पर है पार्टिकल, यहाँ इस हाइट पे है, बाद में कितना है, इस हाइट पे है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, हाँ या नहीं, हाँ, कितना हुआ, हाउ मच, वर्टिकली हाउ मच इट हैज डिस्प्लेस्ड, बोलो, दिख तो रहा है सामने, मैं सिर्फ यहां से यहां निकाल रहा हूं, नॉट कंसर्न फ्रॉम, आई एम कंसर्न फ्रॉम ए टू बी, in question it is given this is h, I'm not saying it is maximum height, I'm not saying it is maximum height, okay. So from here, from this point to this point, I can use s equal to ut plus half at square, and s is how much, h, that means you have taken downward direction to be positive, u is how much, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सोच, minus v naught sin theta, you just said the downward direction is positive, that's why you said this is h, no, you didn't say minus h, किसको लेना है माइनस h, पहले बोलो क्या डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव है, तो लिख लो साइड में पहले अपवर्ड पॉजिटिव है, अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो s क्या है, माइनस h, u कितना है, v नॉट साइन थीटा, a कितना है, माइनस जी, डाल दो इसमें, टाइम निकाल लो, डाल दो, टाइम आ जाएगा, so minus h is equal to v naught sin theta t minus half gt square, interestingly it is a, अच्छा ये तो quadratic है, t तो quadratic आ गया, you don't like quadratic, no, you don't like quadratic, I'm telling you, okay, इसे आ जाएगा, पर इससे भी इजी तरीका एक और, कि v, जो थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, इसमें ना ये पता है और ये भी पता है और ये भी पता है, बस ये निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये इससे आ जाएगा बट करते नहीं है, ठीक है, लेट्स स्किप इट, सो v is, we don't know, u is how much, keep one reference only in the whole question, so right, minus v naught sin theta, okay, is equal to 2 times acceleration is minus g into
भाई तुमने अपवर्ड पॉजिटिव, अच्छा अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी सॉरी, करेक्ट 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 करेक्ट, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी एंड दिस इज माइनस एच, वेरी गुड। तो आपका जो आएगा वी स्क्वायर आएगा वो आएगा 2gh प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा फाइनल वेलोसिटी, सही है। तो इसका स्क्वायर रूट होगा, फाइनल वेलोसिटी इसका स्क्वायर रूट होगा 2gh प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये हो गया। सो बैड टाइम इट इज वेरी बैड टाइम, मतलब टाइम जो खराब आने वाला है ना, देख वी ये है ना, अब इसको टाइम निकालने के लिए वी टू पुट दिस वी इनटू दिस नो, तो गंदा सा टाइम आने वाला है। वी समझ में आ गया, इट इज इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये उल्टा है, कुछ कुछ गड़बड़ है। अच्छा देखो, जब तुम स्क्वायर रूट करे तो ये प्लस माइनस था ना, तो ये प्लस आंसर है कि माइनस आंसर है? वेरी गुड, माइनस आंसर है, माइनस आंसर है, माइनस आना चाहिए ना भाई, तुमको पता है इस पॉइंट पे तुमने डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर ले रखा है, सो देयरफॉर नीचे वेलोसिटी तो माइनस है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी ये द v इज इक्वल टू u प्लस एटी में डालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस ऑफ दिस रूट, यस। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v नॉट प्लस वी नॉट साइन थीटा, राइट, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी टाइम t, समझ में आ गया। यहां से जो टाइम आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यस और नो, अरे आएगा ना, यहां से टाइम आएगा वो आएगा v नॉट साइन थीटा माइनस दिस स्क्वायर रूट, दिस बैड स्क्वायर रूट, राइट, डिवाइड बाई जी, ये आएगा। देख लो कर, नहीं नहीं मैंने सही लिखा है, मैंने इसको नहीं सॉरी प्लस, करेक्ट करेक्ट प्लस, प्लस, बिकॉज this I am taking this side, this I am taking this side, so this left side becomes gt, right side becomes v naught sin theta plus this square root। अपने आप लिखो, देखो मत, आ जाएगा तुमको, ठीक है, and just writing this, ठीक है, क्या क्या माइनस जी नहीं है, जीटी लेफ्ट साइड गया ना, जी टू उठा के लेफ्ट साइड किया है, ये वाला उठा के इधर किया है, ठीक है, ओके। ये टाइम आ गया, ठीक, और जो वो आएगा रेंज r प्लस डेल्टा एक्स जो है ना, वो कितना आएगा, इट इज सिंपली v नॉट कॉस थीटा इनटू दिस होल टाइम, राइट, ये जो टाइम आया है ये यहाँ पे रहेगा, ये सुनो, समझ में आ गया, अरे ब्रो भाई, ये यहाँ से particle has gone from here to here, during this time what was the horizontal velocity, u cos theta, from here to here what was the time, this is the same time, so therefore this should be the horizontal range, full range r plus delta x, right। वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो इसका होता है वो होता है v नॉट स्क्वायर बाई जी, ऐसा बोल रहा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो sin स्क्वायर 45, 1 सेकंड, ओके, देखते हैं, नो जस्ट v स्क्वायर बाई जी, v नॉट स्क्वायर बाई जी, मैक्स बोल रहा है मैक्सिमम रेंज इज v नॉट स्क्वायर बाई जी, ये देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, v नॉट कॉस थीटा, पहले तो लिखते हैं v नॉट कॉस थीटा इंटू v नॉट साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाई जी, सही है, दिस इज योर रेंज, राइट, है ना, सॉरी वो फॉर्मूला तो ना एप्लीकेबल है, वो फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है ना,
So we will multiply it inside. पर ट्रिग्नोमेट्री इतना तो नहीं है, डिफरेंशिएशन तो किया नहीं अभी तक है ना, तो फिर तो नहीं आएगा ये। ये कभी नहीं हो पाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वी नॉट कॉस थीटा रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई टोटल बाई जी है, इसका मैक्स करना है। ये ऐसे नहीं होगा ये, दिस इज, इसके लिए डिफरेंशिएशन चाहिए होता है व्हिच यू विल लर्न, यू हैव नॉट लर्नड येट। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा cos थीटा? What is the difference of sin 2 theta? Into 2 no, yes, 2 cos 2 theta. Oh, then you can try it at home. What is UV rule, product rule? Very good. U dash v, very good, very good. I am giving you an idea of how to do it. If you want to do it, you can do it. देखो कैसे करना है। First thing you have to do it, ये वाला जो sin theta cos theta है, इसको लिखो sin 2 theta by 2. It is half sin 2 theta, okay? Just write the hint. Okay? Then you will start differentiating this with respect to theta because you want to find maxima. फिर differentiate करोगे तो वो जो ये sin 2 theta differentiate होगा, ठीक है? यहाँ पे देखो कैसे differentiate होगा। ये ना cos theta into this whole thing है ना, actually this whole thing का power कितना, half है। So it is u and then this is v, where u dash is minus sin theta into this whole thing plus इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन ना एक्चुअली ये पावर हाफ है, तो इसमें अंदर चेन रूल हाफ ऑफ दिस, राइट, n x रेज टू माइनस हाफ इनटू इसका जो डिफरेंशिएशन अंदर है, अंदर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये होगा 2 sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन इज 2 sin थीटा cos थीटा एंड इनटू u cos थीटा v डैश u, ऐसे करके दिस, ये जो ऊपर आएगा इसको g इग्नोर करो, ये सब इग्नोर करो, equal to 0 कर दो। To find maximum, what we do is differentiate and put and equate that expression to 0. वो आएगा, ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे, it is beyond your level, okay? Okay. अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे for swimmer and river, swimmer river और rain drops, ठीक है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेन देखो रेन क्या है, रेन कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है। देखो ऐसा है, ये x से x बनाओ, y बनाओ, रेन यूजुअली फॉल्स फ्रॉम, यूजुअल फर्स्ट केस रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो v रेन लिख दो, लेट्स से इज -4g, इट इज फॉलिंग विद 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। And there is a man, velocity of man who is, so this is vr, and there is a velocity of man who is running, let's say at 3 I cap, okay, ठीक है। Now you want to find in what direction, see question होता है कि in which direction is the man has to hold the umbrella. The concept is the man has to hold the umbrella in the direction of, in the direction opposite to what he is seeing the rain, yes or no? समझ में आया? Man has to hold the umbrella in direction opposite of, not rain, of what he is seeing the rain as. Basically umbrella का direction, तो ये लिखना, ये important यही है, direction of umbrella, opposite बोला ना, मतलब नेगेटिव, राइट, किसका नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ रेन, इज इट वेलोसिटी ऑफ रेन, नो, इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सो बस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये समझाया था मैंने, v ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू m, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस vm, वेरी सिंपल, वेरी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, vr माइनस vm, बस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन,
So basically this formula है बस direction of umbrella. You can remember this formula is minus of VR minus VM. It is VM minus VR, but I would like to you would remember it like this. It is direction of umbrella is minus of velocity of rain with respect to man. Don't remember final results. Remember the cause of the results. Where is they coming from? Okay. Fine. Now, अब क्या होता है? What is velocity of rain with respect to man? VR minus VM. VR minus VM क्या होता है? Velocity of rain कितना? Minus 4J. Velocity of man कितना? Minus 3I. Minus 5 4I minus 3I आएगा. Final answer आएगा 3I plus 4J. Yes or no? यही आएगा. इस केस में 3I plus 4J क्या होगा? 3I plus 4J ऐसा है. So add 4J ऐसे लिख दो और ऐसे लिख दो. ये लिख दो. ये एंगल है. Tan theta is 4/3. Understood? हो गया? 4/3. लेकिन ये भी लिखना पड़ेगा. अब वर्टिकल से वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल से है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ या जो भी नहीं, वर्टिकली अप फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रनिंग. tan इनवर्स 4/3 नॉर्थ तो नहीं है क्योंकि वर्टिकली आपको नॉर्थ नहीं बोलते ना, रेन ऊपर से आ रही है तो वर्टिकल एट tan इनवर्स. अरे ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है. अरे रेन ऊपर से आती है ना भाई, तू ऐसे दौड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो प्लेन नहीं है ना, तो ऐसा बोलेंगे. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं. देखो एक चीज और है, तुम्हें समझ में आएगा. ये थीटा है तो ये 4A3 है. हाँ, तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये tan थीटा 4/3 है तो tan फाई कितना होगा? tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा होता है. समझ में आया? सो अगर tan थीटा इज 4/3 and tan phi is how much? करेक्ट, cot 4/3. मतलब जितना इसका tan, जितना cot का बराबर है थीटा, उतना ही tan phi बराबर होगा ना. तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमने किया है, tan ऑफ, तुम्हें समझ में आता है tan थीटा इज cot ऑफ 90 माइनस थीटा. यस और नो? हाँ, इज 4/3 और 90 माइनस थीटा कितना है? phi है. So cot phi is also 4/3. Yes or no? That means tan phi is how much? 3/4. So समझ में आया? Tan phi is 3/4. So you can say it is at an angle of tan inverse 3/4 from the vertical in the direction of running, because then again one can have a confusion कि ऐसा तो नहीं है. Understood? लिखो, एंगल पूरा क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए. So you can write tan inverse of 3/4 from vertical. वर्टिकल मतलब यहां से इतना एंगल इन डायरेक्शन ऑफ रनिंग. समझ में आया कि नहीं अभी एंगल? हाँ, और यू कैन ऑल्सो से tan इनवर्स ऑफ 4/3 vertically up from the direction of running. You can reverse it also. The theory holds same even if the rain is not vertical. It is same. ये जितना theory है ना, ये same है even if the rain is not vertical. So I'll do one more question जिसमें rain is not vertical. Okay, so x and y, and this time the rain is, let's say, ऐसे बह रही है such that the velocity of rain is -2i. अच्छा, ये बताओ इसका एग्जांपल बोलो वर्टिकल. जैसे रेन है ना ये अभी, इसका एग्जांपल बोलो कैसी है ये रेन. एक एग्जांपल वेक्टर. तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलो नब्दा. Example of this vector, some numbers, with some numbers. जैसे यहाँ पे बोला ना, इसको इस वेक्टर को नीचे वाले को 4j बोल दिया, इसको 4j बोला -4j, और इसको अपने मन से 3i बोला ना, तो अपने मन से तुम इसको भी नंबर दो एक -3i -4j. ठीक है, दिस वेलोसिटी ऑफ रेन. और आदमी कैसे भाग रहा है? हॉरिजॉन्टली भाग रहा होगा जमीन पे. तो
वेलोसिटी ऑफ मैन बोलो एक। हॉरिजॉन्टली तुमको राइट में भगाना है, लेफ्ट में भगाना है, पर हॉरिजॉन्टली ही भगाना है। 5 5 ठीक है, 5 5 फाइन। नाउ अगेन वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मतलब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट? -5 ठीक है, ले -5। -5 means man is running, so this was velocity of rain and this is velocity of man, ठीक है? ठीक। So let me find out what is, बताओ कितना है माइनस वी आर एम, माइनस वी आर एम। -2i plus 4j, -2i plus 4j is in which quadrant? So in this direction the umbrella should be there. That means जो वी आर एम आ रहा था वो ऐसे आ रहा था ना, वी आर एम जो आ रहा है, आर एम रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो ऐसे उल्टा आ रहा है ना, करेक्ट? तो दिस इज द अम्ब्रेला डायरेक्शन, ठीक? अम्ब्रेला डायरेक्शन इज माइनस, कुछ नहीं, अम्ब्रेला डायरेक्शन समझ में आ गया? -2i plus 4j आया नहीं? -2i plus 4j ऐसा होता है ना कि नहीं होता है? तुम्ही ने बोला था, मैंने थोड़ा बोला। हाँ, रेन इज ऑल्सो कमिंग मत बोलो, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, रेन इज कमिंग लाइक दिस, थिंक अबाउट इट। रेन इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू, रेन इज कमिंग फ्रॉम बैक बिहाइंड ऑफ यू। इफ यू आर रनिंग लाइक दिस, द रेन इज कमिंग लाइक दिस। तुम पहले तो सोच लो पहले रेन कैसे आ रहा है, वो यू आर इमेजिनिंग दैट रॉन्ग। इज रेन कमिंग बिहाइंड यू और फ्रंट ऑफ यू? फ्रॉम बैक, करेक्ट। ऐसे आ रहा है ना, और तुम ऐसे दौड़ रहे हो। अच्छा देखो ऐसे सोच लो, अगर ऐसे आ रहा होता और खड़े होते स्टैंडिंग स्टैंडिंग, तो ऐसे ही लगा रहे होते, इस डायरेक्शन में लगा रहे होते ना। समझ में आया? हाँ, ठीक। सही है, अम्ब्रेला डायरेक्शन सही है। देखो अगर तुम ऐसे, रेन आ रही है ठीक है, और इनकी डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर दो, डू यू अंडरस्टैंड कि थोड़ी देर बाद वो वर्टिकल दिखने लगेगी कि नहीं? मतलब थोड़ी देर वर्टिकली ऐसे हो जाएगा, मतलब अम्ब्रेला ऐसे लगाओगे ना। हाँ, नहीं होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, उल्टा जाओगे तब। क्या ये कैलकुलेशन सही है? सबने किया है ना? वेलोसिटी ऑफ मैन, सोचने दो, रुको। अगर रेन ऐसे आ रही है, तुम भी ऐसे दौड़ना चालू कर दो, तो आफ्टर सम टाइम जीरो पे हो, बहुत तेज दौड़ोगे, नहीं, सही है, सही लगाया ना? अगर वो आदमी आगे जा रहा है तो रेन को पीछे वाला कंपोनेंट देगा ना, रेन को उसके लिए रेन, अगर रेन कहीं कुछ नहीं हो रहा आगे जा रहा है तो रेन पीछे जाएगा। हाँ, अगर कहीं मैं इसको मैं डायग्रामेटिकली बनाता हूँ, अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। हाँ, मतलब सही है ना, ऐसे ही लगेगा ना ये, आगे से ना, सही है ना? मुझे भी विजुलाइज नहीं हो रहा है, पीछे से आ रही है रेन, रेन पीछे से आ रही है। हम्म। हाँ, तो रेन फील्स लाइक दिस, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और रेनफॉल ऐसे हो रही है, राइट? मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, राइट में हॉरिजॉन्टल आदमी ही जा रहा है, वर्टिकली रेन ही हो रही है, अब कंफ्यूजन मत करना उसमें, ठीक? तो रेन ऐसे दिखती है, रेड वाला वेक्टर रेन कैसे दिखती है, ये तो सही है।
You're running straight, right? Why would the rain ever appear to come like this? When you're driving or something, and like if you're imagine you're in a cycle, if you're just standing, the rain is falling on your head. But when you're driving, you fall on your face. सामने आती है ना मुंह पे, Okay, fine. ठीक, समझ में आ गया? तो ब्लू वेक्टर यहाँ पे वो वेक्टर है जो आदमी चल रहा है, ठीक है, ये ब्लू वेक्टर आदमी का वेक्टर है, ठीक है, और ब्लैक वेक्टर रेन का है, वो चेंज नहीं हो रहा। रेड वेक्टर क्या है? एपरेंट वेक्टर है जो दिख रहा है, ठीक। अब अगर आदमी जो है, ये उस दिन भी समझाया था मैंने, अगर आदमी ज्यादा चलने लगा, तेज चलने लगा, तेज स्पीड से आने लगा, तो ये रेड वेक्टर और पीछे हो जाएगा ऐसे, ये एग्री करते हो? अगर आदमी नहीं चल रहा है, ऐसे जीरो है, नहीं चल रहा, तो रेड वेक्टर ऐसे दिखेगा। अब तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? अगर रेन, अगर तुम, अच्छा ठीक है, और से तो अगर पीछे जाने लगे, ऐसे ऐसे जाने लगे, तब जो रेड वेक्टर है, रेन एपरेंट वेक्टर, वो ऐसे हो जाएगा। सही है? ये यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अच्छा। अभी आदमी ऐसे है, ठीक, और रेन ऐसे है, ठीक है। And rain is already like already. रेन अगर ऐसे है तो, रेन अगर, अच्छा आदमी नहीं चल रहा है और रेन ऐसे है। अच्छा एक और तरीका है इसको सोच समझने का, ये रेन ऐसा है, इस रेन के दो कंपोनेंट तोड़ लो, ब्लू वेक्टर के दो, एक ऐसा और एक ऐसा। इस ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। हॉरिजॉन्टल क्या करता है? हॉरिजॉन्टल जो भी है वो तो व्हाट, वो तो एकदम ऐसा आता दिखाई देगा ना। जो आदमी का कंपोनेंट है, हाँ, उसका नेगेटिव उसमें ऐड हो जाएगा। आदमी अगर ऐसे जा रहा हो तो रेन हमेशा ऐसे दिखाई देगी, हाँ। आदमी अगर ऐसे जा रहा है ये, तो ये वाला कंपोनेंट इसमें पीछे ऐड होगा। In the case I've given Already coming at an angle, yes, this angle. and you are walking. Can we shift this arrow like this? We rain na? Sorry, one second. It's falling like this. You are going further away. Why would you hold your umbrella in front of you? अगर सीधे खड़े होते हैं, अगर सीधे खड़े होते हैं, then you would point like this. but अभी रन कर रहे हैं, That doesn't change हाँ। अच्छा ठीक है, एक अभी सही एकदम एक्सप्लेन किया। देखो तुम खड़े हो, रेन भी वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो तुम अच्छा अम्ब्रेला कैसे लगाते हो? ऐसे, ठीक, रेन वर्टिकल ही है। तुमने दौड़ना चालू किया तो क्या अम्ब्रेला वर्टिकल लगाते हो? नहीं लगाते। किस तरफ लगाते हो? जिस तरफ दौड़ रहे हो कि जिसके उल्टा साइड? जिस उल्टा साइड लगाते हो। फिर तो फिर नहीं समझा, फिर समझा नहीं सकते। अगर तुम देखो, अगर रेन वर्टिकल है और तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाते, राइट को जाते हुए तुम्हारा अम्ब्रेला राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो फिर या तो तुमने कभी गाड़ी चलाई नहीं है रेन में। एक तो फिजिक्स से दिख रहा है, विजुअलाइज तो ये तुमको करना ही पड़ेगा कि अगर वर्टिकल रेन है और तुम नॉर्थ में जा, मतलब राइट साइड जा रहे हो, तो तुम्हारा अम्ब्रेला राइट साइड में टिल्ट हो जाएगा। स्विमिंग करने जाती हो क्या तुम? जाती हो? स्विमिंग करने जाते हैं जब, स्विमिंग में तो नहीं एग्जांपल है कि पानी सब तरफ होता है। So let's say I'm walking like this, and rain is falling from behind. एक काम करना, वो जो टोपी, एक टोपी होती है ना जिसमें, जैसे टोपी नो ऐसा वाला, इसमें नॉर्मल कैप जो होता है, अगर तू वॉक कर रही होती है रेन में तो तू आगे उसको आगे करती है कि पीछे करती है? बड़ा सिंपल सा है, आगे करती है। क्यों?
भाई मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू कैसे भी कर सकती है, उसका कैप को आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। वो तो लोग जनरली ऐसे आगे करके रखते हैं। So the rain is coming like this, then I'll. नहीं, रेन वर्टिकल है, रेन वर्टिकल है, तुम चल रहे हो ऐसे सीधे, तो तुम ऐसे आगे रखोगे कि पीछे रखोगे? क्यों? I need to protect my face वाई? because I don't want to get wet from the bus. तो पीछे, पीछे क्यों नहीं रखोगे? ज्यादा भीगेगा आगे कि पीछे? So she understood vertical and when we're moving in front and it's coming back. Here, rain is falling already not on vertical, it's falling. Horizontal. with the quadrant. नहीं, बट शी इज नॉट, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रही ना कि इफ रेन इज वर्टिकल एंड आई एम गोइंग टू द राइट, द अम्ब्रेला शुड बी टू द राइट। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। So if I'm walking like this, the rain is coming from behind. नो, रेन इज वर्टिकल। नहीं, ये नहीं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। आई एम टेलिंग यू सिंपल केस, रेन इज वर्टिकल, यू आर वॉकिंग लाइक दिस, इन विच डायरेक्शन विल यू होल्ड योर अम्ब्रेला? वो समझ में आ जाएगा, देन आई कैन एक्सप्लेन दिस। फ्रंट एक्सेप्टेड है ना, चलो एक्सेप्ट कर लो थोड़ी देर, तुम बाद में सोचना। अगर रेन वर्टिकल है एंड यू आर गोइंग लाइक दिस, द अम्ब्रेला विल टिल्ट लाइक दिस, यस और नो? ठीक है, so because of your walking, what you have done, you have to tilt the umbrella. If you walk fast, you have to tilt more, right? Your tilting is proportional to your walking speed. Understood? ठीक। इस केस में इधर देखो, तुम्हारा अगर आदमी खड़ा होता तो अम्ब्रेला ऐसे लगाता, ठीक है, ठीक है। सो तुम्हारा वॉकिंग इन्फ्लुएंस करता है टिल्टिंग को ना, करता है। जिस डायरेक्शन में वॉक करोगे उतना ही डायरेक्शन में उसको टिल्ट करना पड़ेगा, उतना ही उस डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा, यस और नो? समझ में आया? वर्टिकल रेन में द मोर यू फास्टर यू वॉक इन दैट डायरेक्शन, द मोर यू हैव टू टिल्ट in that direction, in direction you are walking. If you are not walking in this case, you would put your umbrella like this, yes or no? Right? Now our concept is, the more you walk in some direction, the more your umbrella will be tilted in that direction, yes or no? तुम ऐसे अम्ब्रेला रखा है, तुमने थोड़ा वॉक करना चालू किया, स्पीड थोड़ा कम स्पीड से, तो तुम्हारा अम्ब्रेला आगे जाएगा ना, टिल्ट होगा ना आगे, तो कभी ऐसा हो जाएगा बीच में, yes? If you walk more in this with more speed, ये ऐसा हो जाएगा। अभी understood? All this is, you will accept this under all the assumption, मतलब all this is based on the assumption कि when you walk in the direction in some x direction, your umbrella tilts to the x direction, right? ये तुम actually करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा। How the man is seeing, that is the one. This blue is how it's called. Able to see if I'm walking like this, the rain is coming. The rain is not coming like this. The rain is coming like this normally when you're walking. ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, माइनस ऑफ वी आर ऑफ एन। तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल ये कर देना, बस इतना याद रखेगा, इतना याद रहेगा, बस कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और अगर एंगल निकालना सही से आता है, लिखना सही से आता है कि कौन सा वर्टिकल से है कौन सा हॉरिजॉन्टल से है, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। ओके, नेक्स्ट एक तो अभी करना है रिवर फ्लोइंग क्वेश्चंस। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर डूइंग रॉन्ग। लिखो रिवर ऑफ विड्थ डी, रिवर ऑफ विड्थ डी, ठीक है। इट इज फ्लोइंग विद वी आर, वी रिवर। I'm telling this for the third time, I think. There is a man who can swim with velocity vm. Independently, he can swim with velocity vm. ठीक है, ठीक। अभी एक काम करो, मैं ना थीटा वैल्यूज दे रहा हूँ। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम दिस, ओके, दिस पॉइंट, सो थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक।
and I'm also going to give you some values for VR and VM. So let's say VR is equal to 3. Okay. What units? VM is 5. Okay, and D value is 10 units. Check. And I'm also, we'll have general values of theta. Okay, general values of theta. So theta we are going to put 0. What all theta is, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree, and 180 degree. Okay. First let us do simple cases. If theta is 0 degree, ठीक है, 0 डिग्री है मतलब ऐसे, थीटा यहां से मेजर्ड है, समझ में आ गया है? 0 डिग्री है तो मोशन कैसा होगा बोलो? यू आर जस्ट गोइंग लाइक दिस विद व्हाट स्पीड? ए। तुम्हारा खुद का स्पीड कितना है गौरव? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 8। गुड। क्या है? ऐसे जाओगे कितना स्पीड से जाओगे? 8। ये इंडिपेंडेंट है, तुम स्विम कर रहे हो, ये पानी है जो लेके जाता है। सो कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा? यू आर गोइंग लाइक दिस विद 8 रिजल्टेंट वेलोसिटी। यस 8। ठीक है। विल यू बी क्रॉसिंग द रिवर? नेवर, राइट? नेवर क्रॉसिंग द रिवर लिख लो, नेवर क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, नेवर क्रॉसिंग द रिवर। क्या 180 में होगा क्रॉस? नहीं होगा। 180 में कैसे जाएगा? 2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन। यस 2 इससे ऐसे जाएगा लेफ्ट में, क्रॉस नहीं होगा। गुड। ठीक, अब लेते हैं 30। ठीक है, क्या हुआ? 5। हाँ तो ठीक, अब लेते हैं 30। 30 में देखो व्हाट इज हैपनिंग इन 30। 30 में द डायरेक्शन वेक्टर इज लाइक दिस, intention is like this, right? ठीक। so therefore you will, what you will do is, resultant क्या होता है? resultant is VR plus VM. you have to break this VR, sorry VM, this is VM, right? VM को break करना पड़ेगा दो component में। कौन कौन से component? VM, so 5 cos 30 I cap, 5 cos 30 I cap plus 5 sin 30, ये हो गई मैन की वेलोसिटी। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 3, बस 3 आई। ये सुनो 3 तो आई है ना, बस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज जस्ट आई। तो यहाँ पे जो फाइनली जो आई वेलोसिटी होगी वो होगी इन दोनों का सम ऑफ दिस। ओके, एंड जे वेलोसिटी इज जे 5 sin थीटा। अब मुझे बताओ जरा 5 sin थीटा कितना होता है? 5/2, तो 2.5 जे। और जरा कैलकुलेटर से यूज करके बताओ ये कितना आ रहा है? 5 cos 30, 5 cos 30 प्लस 3 कितना है? कैलकुलेटर से यूज करो। हाँ करो करो, डेसिमल वैल्यू चाहिए। √3 is 1.732, 4. एक आंसर बोलो। 30 is √3/2 0.8। मुझे फाइनली चाहिए दोनों का ऐड करके 7.3। ठीक, 7.3 आई। ठीक, प्लस 2.5 जी। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। दैट मींस इफ आई प्लॉट दिस, इधर देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसी आ रही है? 7.3 आई। इसका दो कंपोनेंट है ना, वन कंपोनेंट इज 7.3 आई, yes or no, and the other component is 2.5 j. Time of crossing is always, you have to find the vertical component. That way you can find the time of crossing. What was this distance? 10 units. So time of crossing is 4, distance by speed. So इस केस में time of crossing आएगी, time of crossing जल्दी लिखो, 4 केस और करना है। time of crossing is 10/2.5। ये समझ में आ गया क्यों किया 2.5? वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, 2.5। ठीक, तो ये 4 आवर्स पानी में रहेगा ना आदमी,
4 आवर्स 4 यूनिट्स जो भी है, राइट। और ये ऐसे जाएगा फाइनली, हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा, हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा, बस ना वो बोलो, व्हाट आर यू मल्टीप्लाइंग, व्हाट आर यू मल्टीप्लाइंग, 7.3 into 4, yes or no, understood, What's the time? time to take travel, understood, ये हो गया 10, समझ में आ गया, हो गया 10। और अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट हाउ मच डिस्टेंस ही हैज स्वम, स्विम का होता है क्या पास्ट टेंस, स्वम, स्वैम, हाँ, तो ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस हाइपोटेन्यूज, ओके, अंडरस्टूड, ठीक, What is the root of that time? We know 7.3. व्हाट, Horizontal distance from, we know that it's 7.3. हाउ डू वी नो, 10 तो दिया है ना पहले से, But like, there's no point in solving 7.3. We know that it's the value point is 7.3. आई डोंट, That's what the horizontal component will definitely be 7.3 into 4. horizontal distance, We don't need a triangle, that's what I'm saying. no, I'm using the triangle to find this, For horizontal we don't no, need हाँ ठीक, ये निकालने के लिए देख ले, ये जो चीज है ना अभी हाईलाइट की, उसको निकालने के लिए बाकी दो साइड चाहिए, वी नीड, ठीक है। बाकी एक और है कि ये थीटा तो पता था ना, ये थीटा 30 है ना, ये 30 है ना, तो ये 60 है, हाँ ये 60 है, 90 है, तो एनीवे भी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आल्सो यू कैन फाइंड, ये 10 है, ये 60 है, यू कैन फाइंड बोथ दीस साइड्स बिकॉज यू नो sin 60 cos 60 tan, ये सब पता है, तो एनीवे निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। अभी लेट अस टेक थीटा कितना 60 डिग्री, कितना थीटा 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री किया, ये लिख लिया तुम लोगों ने, ये everyone has understood 60 डिग्री, 60 डिग्री, चलो ये वाला कंपोनेंट बोलो कितना है, 5 cos 60 i कैप प्लस वर्टिकल कितना है 5 sin 60 j कैप प्लस रिवर्स वेलोसिटी 3 i कैप, तो फाइनली आएगा, ये आएगा 2.5 प्लस 3 कितना है 7.5, 7.5 i प्लस 5 sin 60, वैल्यू बताओ कैलकुलेटर, 5 root 3 by 2, वैल्यू 4.3 j, ठीक। तो इस बार टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा, वो आएगा, अरे ये 5 cos 60 2.5 है, ओ सॉरी 6.5, 2.5 प्लस 3 6.5, अरे हाँ 5.5, सॉरी 5.5, 2 plus 3 is 5, sorry, and time of crossing will be time of 10 by 5.5, right, नहीं आई नहीं, j से, टाइम ऑफ क्रॉसिंग j से डिसाइड होता है ना, सो 10 by 4.3, ठीक है, ये कितना आता है, टू पॉइंट थ्री, ठीक है, 2.3 यूनिट्स टाइम है, ठीक, 2.3 यूनिट्स टाइम है। इसमें देखो टाइम कम आया कि ज्यादा आया, इसमें आ रहा था 4, इसमें कितना है, कम आया, क्यों आया, कैन यू फिजिकली एक्सप्लेन, बिकॉज यूर, yes you are going more, you are trying to go more towards the vertical component, your effort is in crossing the river, right, ठीक, so therefore if you understand this, when is the least time, which case will be the least time, when theta is 90, right, तो वो भी करेंगे, बट यहाँ पे भी अच्छा है, 90, even if there is river, हाँ, क्योंकि वर्टिकल कौन दे रहा है, रिवर तो नहीं देता वर्टिकल, मैं नहीं देता ना, खाली आते हैं, रुको, तुमने टाइम क्रॉसिंग में नीचे वाला कंपोनेंट क्या है ये बताओ, टाइम क्रॉसिंग इज डिस्टेंस बाय स्पीड, ये स्पीड कौन सी स्पीड है, वर्टिकल,
वर्टिकल कहाँ से आती है, मैन से कि रिवर से? सिर्फ मैन से आती है ना वर्टिकल, राइट। 90 करके देखते हैं ये। अच्छा इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकाल लो, वो होमवर्क है, लिख लेना। ड्रिफ्ट कितना है, दिस विल बी 5 into 2.3 है ना, ये लिख लो। अच्छा इसके बाद व्हाट इफ थीटा इज 90? if theta is 90, then the time of theta is 90, then the final velocity is 3i plus the full is 5j, right? इसमें तो डाउट नहीं है। अगर थीटा 90 है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यही है, हाँ। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है, तब 2 आएगा, 10/5 आएगा, which is 2 units, and the drift will be equal to 3 into 2, 6 unit। ठीक है, फाइन। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं थीटा अगर 120 हुआ तो क्या हुआ। थीटा अगर 120 है, थीटा 120 है तो द स्पीड इज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, राइट। ये वर्टिकल ये 30 है ना, इतना समझ में आया? ठीक। जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसका दो कंपोनेंट है, एक है v cos 30 आई कैप, ये सर नो, v cos 30, तो 5 cos 30 ये सर नो, आई कैप माइनस 5 sin 30 j कैप। अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। So 5 cos 30 with a j cap minus 5 sin 30 with a I cap, ये सही है? थोड़ी देर सोचो अपने आप। ये मैन है ना, मैन को तो 5 है स्पीड इसकी 5 है, एंगल 30 है इतना, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 5 cos 30, सॉरी ये कंपोनेंट है 5 cos 30, ये है 5 sin 30। क्या डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक। एंड व्हाट इज द रिवर का स्पीड, 3 आई कैप। फाइनली कितना आएगा देखो, जे में आ रहा है 5 cos 30, मतलब 5 √3/2, 4.3, हाँ 2.3 था ये, हाँ 4.3, ठीक है, ये था 4 एंड 4.3 जे कैप है, और ये आ रहा है देखो 5 sin 30 2.5 है, सो ये हाफ आई है, इट इज हाफ आई है ना, क्या हुआ? अरे भाई ये 2.5 है विद नेगेटिव, तो 3 minus 2.5 इज 0.5, ठीक है, रिजल्टेंट आ गया। I want what you're consuming. Time is 10/4.3. That means you are consuming. बाइस थ्योरम है ना, एक बार डिडक्शन हुआ तो मतलब 70% चांस, दो बार डिडक्शन हुआ तो 99% चांस, एनीथिंग। अरे जनरली इफ यू आर सस्पेक्ट, जैसे एक बार तुमने कुछ कैंसर का वो करवाया डिटेक्शन टेस्ट, तो 70% 80% चांस होता है कि इट इज एक्चुअली देयर, इवन इफ द टेस्ट सेज यस। छोड़ो तुम, कोविड टेस्ट होता, कोविड टेस्ट, तुमने कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है, तो इट्स नॉर्मली इट इज 70 to 80% चांस कि एक्चुअली यू हैव, क्योंकि समटाइम टेस्ट आल्सो गो रॉन्ग, बट इफ यू डू अ टेस्ट सेकंड टाइम and still says yes, then the probability should suddenly jumps to 99%, almost surety। कुछ नहीं वो तुम think about it, why 90 से सेम थोड़ा ना, टाइम 90 में तो 2 था ना, इसके जैसे सेम हो सकता है, इसके जैसे सेम है, बिकॉज नाउ इसमें इस केस में और इस केस में दोनों में the vertical component is same, ठीक, but in this case the drift will be very, क्योंकि तो हाफ ही it is managing, right, so बस यहाँ पे कहीं पे जाएगा ना, समझ में आ गया, drift is half into this value,
ठीक है, he will reach here somewhere, ठीक है। अच्छा इसमें एक ये भी होता है, इसमें ड्रिफ्ट देखो हाफ हुआ ना, हाफ इंटू हाफ, ड्रिफ्ट हाफ इंटू दिस, ठीक है। ये इस केस में ना एक्चुअली इफेक्टिवली ना वो ऐसे गया है ना, ये सर नो, समझ में आया? If you trace the path of the person, he is going like this, yes or no? This drift is zero or non-zero? Non-zero, right? सही है ना? हाँ, और ये ड्रिफ्ट किस, अच्छा ये ड्रिफ्ट ना इस साइड हुआ है, सॉरी, ये हाफ आई प्लस है ना, इट इज टुवर्ड्स राइट, तो ड्रिफ्ट ऐसा हुआ है ये वाला, मतलब यहाँ से, मतलब पार्टिकल जाना ऐसे चाहता था, बट रिवर उसको ऐसे लेके गई, फाइनली वो ऐसे गया, तभी तो उसकी फाइनल रेजिस्टेंस वेलोसिटी हाफ आई आ रही है, ठीक है ना? तो एक्चुअली ही इसमें इसमें देख लेना, इसमें द एक्चुअल पाथ इज लाइक दिस, यस और नो? इट इज वर्टिकल, इट इज वर्टिकल, नो, द फाइनल पाथ इज नॉट वर्टिकल। इस केस में 90 वाले केस में इज द पाथ वर्टिकल? नो, ड्रिफ्ट इज, देयर इज ड्रिफ्ट, ऐसा है। अच्छा, इस केस में पाथ वर्टिकल है क्या? नहीं है, तो सब में वो वर्टिकल से मतलब सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस तो नहीं कवर कर रहा, किसी एक केस में मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। किस केस में? जिसमें ड्रिफ्ट क्या होगा? जीरो, ड्रिफ्ट जीरो। अरे भाई स्ट्रेट कवर करना है अगर, तो ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए? ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। ड्रिफ्ट कहां से आ रहा है? ड्रिफ्ट इससे आ रहा है ना, इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। ये चीज क्या है? आई कैप, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ मैन का हॉरिजॉन्टल एंड रिवर। दैट मीन्स इन द केस वेयर द मैन हैज अ component of 3 opposite, in that case the river will exactly cancel his horizontal component. तुम ऐसे 5 को ऐसे एंगल पे कर सकते हो ना कि 5 का एक हॉरिजॉन्टल 3 आए, 5 के 2 कंपोनेंट बना सकते हो ना। जैसे देख, अगर 5 अगर 60 डिग्री पे था, अभी देख यहाँ पे 5 के 2 कंपोनेंट देख, इतनी देर से पता नहीं क्या कर, इसका एक कंपोनेंट 5 cos 30 है, विच इज 4.3 आ रहा था, कितना आ रहा था? 4.3, और एक कितना? 2.5। तो 5 के 2 कंपोनेंट है जिसमें एक 4.3 और एक 2.5 है। इफ यू कीप इट सम एंगल, राइट, सम एंगल पे उसका एक कंपोनेंट 3 हो जाएगा ना, वो एंगल निकाल सकते हैं, कितना एंगल है? कुछ नहीं, ये 5 है, 5 है, उसका ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये पाइथागोरस से 4 हो गया। तुमको पता है कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 7, वेरी गुड, समझ में आ गया। ऐसा अगर इस एंगल पे जाओगे 37 पे, तो क्या होगा? मैन विल एक्चुअली रीच फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट। अंडरस्टूड? दिस इज द टाइम ऑफ शॉर्ट, दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो यूज करते हैं ना, अभी तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा ना अभी। Not question, sir. Why would someone calculate at what angle they are leaving? Yeah, fastest not fastest, very good, less time नहीं, fastest मतलब less time ही तो होता है। fastest इसमें पहुंच रहा है वो 90 वाले केस में, ये लिख लो, ये वाला केस है fastest वाला, बिकॉज उसमें टाइम इज 2 hours, बट उसमें ड्रिफ्ट है। और इस वाले केस में मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, राइट, लिख लो इसको भी, दोनों केस। और डोंट फील कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इन नेविगेशन, मुझे कहाँ जाना है और मुझे कहाँ लेके जा रहा है, इम्पोर्टेंस, राइट। हाँ, शिप जा रहा है, हाँ, रेन, कार डिजाइन करनी है मुझे, उसका विंडशील्ड किस एंगल पे रखूं, तुम्हें लगता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है? क्यों विंडशील्ड वर्टिकल नहीं होती ना? ऐसे बनाएगी तो वर्टिकल बना देगी। विंडशील्ड बैक में क्यों नहीं? जाओ जाओ, मैं भी, हम खत्म कर रहे हैं।